Good morning, students. So today we'll be, doing differentiation once again, but this time some advanced level problems, some higher problems of differentiation, which we have till now not done. ऑलमोस्ट आप लोगों ने सारे फॉर्मूलेज अभी तक देख लिए हैं. से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चेन रूल देख लिया, आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल देख चुके हो, आप लोग क्वोशिएंट रूल देख चुके हो, आप लोगों ने पावर वाले क्वेश्चन कर लिए थे, आप लोगों ने लॉग वाले कर लिए थे ना. आज हम क्या करेंगे, इनफैक्ट आप लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर लिया था. एंड आई विल नॉट से दैट कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अभी तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज I don't think that everybody has understood that logarithmic differentiation. So we might take some of those particular questions also. But as of now, let's start first of all with inverse function differentiation. Now, what do you mean by the term inverse function? Now, ये पूरा का पूरा एक trigonometry का chapter है, which is known as inverse trigonometry. Now, say for example, if somebody talks about this particular formula, पहले तो मैं आपको 3-4 formulas लिख देता हूँ या 3 formulas. First, d by dx of sine inverse x, it should be equals to 1 upon under root of 1 minus x square. Sine inverse x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 upon under root of 1 minus x square. Second formula, d by dx of cos inverse x, it should be equals to minus 1 upon under root of 1 minus x square. Okay, then comes third, d by dx of tan inverse x, it should be equals to 1 upon 1 plus x square. Now let's first of all understand that these three formulas, how it can be used or optimized for the part of differentiation. Suppose करो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ओनली राइट द फॉर्मूलाज, बट डोंट वरी, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूलेज पे बेस पे क्वेश्चन आएंगे. सो लेट्स ट्राई एंड डू दोज पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस which normally comes in the kind of exam. Okay, it can be a CBSE board exam, it can be a state board exam. So let's see this. फर्स्ट पार्ट है, सपोज करो मेरे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है किसी ने, d by dx ऑफ, यहां पे किसी ने लिख दिया साइन इनवर्स 6x, साइन इनवर्स 6x. रिमेंबर देयर इज गोइंग टू बी अ शीट व्हिच इज गोइंग टू बी फॉलोड. गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी शीट्स आपके पास में आ रहे हैं वो भले ही बहुत इजी हो या टफ, प्लीज गाइस कीप ऑन डूइंग दोज शीट्स विदाउट फेल. Okay, now sin inverse 6x should be equals to, what is the formula? आप सिंपल दोबारा से वही काम करोगे जो अपन चेन रूल में करते हैं. कैसे? sin inverse x का फॉर्मूला आपको मालूम है. sin inverse x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon under root of 1 minus x square. What is x square? x square, तो 6x whole square. ओके, बट देन ये तो आपने अज्यूम किया था इसको x, तो फिर क्या अपन करते हैं, d by dx ऑफ assumption. What is the assumption? 6x. Use a lot of brackets. Then it should be equals to 1 upon under root of 1 minus 36x square. d by dx of 6x is x, तो यहां पर आ जाएगा, सॉरी 6. So what is the final answer? It should be 6 upon under root of 1 minus 36x square, and that's all. It's done. Okay, let's try and understand some another question. So something like this. Second, d by dx of cos inverse root x. Okay, this is the question. Let's apply the degree. Okay, right over here. So इसे कैसे करोगे? cos inverse x, cos inverse x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? -1 upon under root of 1 minus root x का स्क्वायर, -1 upon under root of 1 minus x square डॉट. अब इसका जो अजम्पशन माना था उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. सो इट्स गोइंग टू बी d by dx ऑफ
root x. Okay, let's try and see this now. It should be equals to minus root x का कितना हो जाएगा 1 upon 2 root x. तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस 1 upon 2 root x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x, क्योंकि रूट x का स्क्वायर विल बी x, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया एंड दैट्स ऑल इज द आंसर. Let's try and understand now the next level question or the next type of question. Let's say suppose मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा थर्ड, tan inverse log x, tan inverse log x, आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, log 7x, log 6x upon 2, log root x, anything at all. Now how will you do? First of all 1 upon 1 plus x square, x square dot d by dx of log x, correct? Then आगे it should be equals to d by dx of log x is 1 upon x, तो यहां पर आएगा 1 upon x bracket 1 plus log x the whole square, and that's all it's done. And that is known as inverse trigonometric functions or the inverse function differentiation. इसी के अंदर एक और मेथड आता है which is known as substitution, but वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस. आज लिटरली काइंड ऑफ आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग मी टू मी शायद एक एक्सरसाइज छोड़ करके आप ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो. So let's see, and then we will come back to these particular inverse trigonometric once again. So guys, please remember to note down this formula. वीडियो को दोबारा से उस जगह पर जाके जहाँ पर ये 3 लिखे हुए थे वहाँ पर प्लीज वीडियो को लेके जाओ, पॉज करो एंड नोट डाउन these formulas and learn them because ये confirm question है, आता ही आता है. Okay, let's rub this. So यदि आपने देखा होगा तो इनमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब जस्ट केवल formulas थे and that's all. I have substituted the formulas and that's all. Now let's study the next level questions all together. ये थोड़ा सा दिमाग खाने वाले हैं आपका, so understand them very very carefully. Let's understand, इसको बोलते हैं parametric functions. Parametric functions. Of course ये हम differentiation का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट ये सारे के सारे वो लेवल के क्वेश्चंस हैं ऑल टुगेदर जो डिसाइड करते हैं कि 4 मार्क्स आपके आएंगे या 5 मार्क्स आएंगे, या ये मतलब ये 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चंस पे नहीं आते. दीज क्वेश्चंस विल ऑलवेज कम फॉर अराउंड 4 मार्क्स, ओके, और 3 मार्क्स. नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय पैरा. पैरा मींस हाफ, paramilitary, semi-military, semi-police, okay, like those. So parametric functions, para means half. अभी सपोज करो किसी ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट x is equals to at square, x is equals to at square, और फिर किसी ने आपको दे दिया say y is equals to bt square, समथिंग लाइक दिस. वो कुछ भी दे सकता है, कोई भी फंक्शन. अभी मैं एकदम मोस्ट सिंपलेस्ट वाला दे रहा हूँ आपके लिए. x equals to at square, y equals to bt square. Now how will the question come? Question will come like this. Find out dy by dx. आपको ये फाइंड करना होगा dy by dx. Now comes the question, sir dy by dx कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहला काम तो आपको ये देखना है, यदि आपने यहाँ पर dy by dx लगाया तो फिर ये t का क्या होगा? t तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो आंसर 0. यदि आपने d by dx किया तो x का तो 1 हो जाएगा, बट ये पूरा कांस्टेंट, ये भी 0 हो जाएगा. 0/0 नॉट डिफाइंड. इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक लूप निकाला है, एक बाईपास. नाउ लेट्स सी कैसे करोगे. a कांस्टेंट है, आप दोनों में देखोगे दोनों में कौन सा वाला एक कॉमन टर्म है जो पढ़े आपको दिख जाएगा, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो. जैसे इसमें t है दोनों के अंदर, तो आप क्या करोगे, पहला काम dx by dt, dx by dt, ओके. सो dx by dt मतलब इस बार आप t को वेरिएबल मान रहे हो. यदि आपने t को वेरिएबल माना तो a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, d by dt of t square,
और इट शुड बी इक्वल्स टू a ब्रैकेट 2t, और फिर t का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2at। आगे बढ़ते हैं, dy बाय dt, dy बाय dt, इसका मालिक कौन हुआ? t। तो अब की बार क्या करोगे? सिंपल, b बाहर निकाला, d बाय dt ऑफ t स्क्वायर, तो इट शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा b ब्रैकेट 2t, और इट शुड बी इक्वल्स टू 2bt। ना आपके पास में dx बाई dt भी आ चुका है और dy बाई dt भी आ चुका है। अब क्या करोगे? आपको यहां पर निकालना था dy बाई dx, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर गाइस द सेम थिंग आई कीप ऑन सेइंग टू क्लास 10th गाइस एज वेल एज टू क्लास 12th गाइस। आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, स्टेट के हो, आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के हो, या ऑफ एनी पर्टिकुलर बोर्ड विच एवर यू फील लाइक, रिमेंबर टू पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा आपको कितना आता है, क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है व्हाट इज dy by dx। सो हाउ विल यू फाइंड आउट dy by dx? dy by dx should be equals to dy upon dt upon dx by dt। सर ये क्या किया आपने? यदि आप ढंग से देखोगे तो ये टर्म ऊपर जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, dy by dx ही लिखा है। इसका मतलब क्या होगा? जो भी टर्म, जैसे आपको dy चाहिए तो y के टर्म को ऊपर रखोगे, x के टर्म को नीचे। तो क्या आंसर आया था अपना? 2bt अपॉन व्हाट इज dy by dx by dt? 2at, 2at, t cancel, 2 cancel, answer is b upon a। this is known as differentiation of the parametric function। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करोगे किसी एक को वेरिएबल लेकर के, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे उसी पर्टिकुलर पार्ट को वेरिएबल लेकर के, देन जो भी पूछा है, यदि उन्होंने y ऊपर बोला है तो y की टर्म को ऊपर, x की टर्म को नीचे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, नॉट इन फैक्ट वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक 2-3 मोर एग्जांपल्स। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, से x is equals to 3 log t square। x is equals to 3 log t square, okay, and then y should be equals to 2 e to the power t। 3 log t square, y is equals to 2 e to the power t। सबसे पहले आप क्या करोगे? और dx by dt equals to 3 तो बाहर ही आपके पास में कांस्टेंट है, d by dt of log t square, और dy by dt should be equals to 2 d by dt of e to the power t। Now dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt। It should be equals to, यहां पर सबसे पहले dy by dt कितना आएगा आपका? 3 की जगह पर 3 आएगा, d by dt of log t square। अब गाइस log t square, तो आपके अपन क्या मानते हैं इसको? log t, log t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 by t। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? 1 by t स्क्वायर। सर लेकिन अभी तो आपने t बोला था, चेन रूल, log t स्क्वायर 1 by t स्क्वायर डॉट d by dt of t स्क्वायर होल अपॉन dx by dt। व्हाट इज dx by dt? ओके, मैंने x वाली टर्म ऊपर लिख दिया है, सो लेट्स रब दिस ऑफ। एक काम करते हैं, पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। सो लेट्स टेक, यहां पर आ चुका है आपके पास में dx by dt should be equals to 3 bracket 1 by t square dot d by dt of t square, which should be equals to 3 bracket 1 by t square dot 2t, क्योंकि d इसका हो जाएगा 2t
t से एक t कैंसिल, it should be equals to 3 into 2 will become 6 by t. Let's take dy by dt. dy by dt equals to 2 d by dt of e to the power t. It should be equals to 2 e to the power t. Correct. Now final answer, dy upon dx. y की टर्म ऊपर है तो पहले आप y की टर्म ऊपर रखोगे which will be 2 e to the power t upon then x की टर्म नीचे रखोगे which is 6 upon t. 6 upon t तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में तो t कहाँ जाएगा? ऊपर. सो आंसर आ जाएगा 1 upon 3 या t dot e to the power t. ये कैसे आया मालूम पड़ा? Because 2 ones are 2, 2 threes are 6, so it will be e to the power t dot t by 3, so 1 by 3. That's all is the answer. So these kind of functions will be known as parametric functions. Now let's take one more example, this time of trigonometric functions, and देखते हैं उसमें क्या होगा. So let's take the trigonometric functions. The first function is going to be x is equals to sine square t. Y should be equals to cos square root t. करेक्ट. x की वैल्यू है साइन स्क्वायर टी, y की वैल्यू है कॉस स्क्वायर टी. अब समझना कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में एक बार डिफरेंशिएशन नहीं, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, पहले इसका फिर इसका. ओके, सो लेट्स टेक dx by dt should be equals to, कैसे लिखते हो इसको? d by dt of sin t स्क्वायर. स्क्वायर था, स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और d by dt, सॉरी dx by dt should be equals to, चेन रूल लगाऊंगा, 2 आगे आ जाएगा तो ये आ गया 2 आगे, sin t की जगह पर sin t. करेक्ट, क्योंकि अपना ये क्या फंक्शन था? दिस वाज x स्क्वायर, तो 2x आएगा, 2x. अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल. तो sin t का डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी d by dt of sin t. फिर वापस यहीं पर ही लिख दिया, और dx by dt should be equals to, and then 2 sin t dot cos t. 2 sin t dot cos t. Then comes, ये तो ये वाला पार्ट हो गया. नाउ आते हैं dy by dt वाले पार्ट पे. dy by dt should be equals to d by dt of cos root t whole square, और dy by dt should be equals to, what is now 2 आगे आ जाएगा, सेम फंक्शन cos root t dot d by dt of dot d by dt of cos root t. करेक्ट. फिर से आगे बढ़ते हैं, और dy by dt equals to 2 cos root t is going to be the same d by dt of cos x या cos t मान लो, cos t. cos t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस साइन t. ब्रैकेट हमेशा लगाना, माइनस साइन t. सर फिर से अभी आपने तो t अगेन द सेम बिकॉज चेन रूल. अब डॉट d बाई डी टी ऑफ, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन, रूट t. करेक्ट. ब्रैकेट लगा देता हूं एंड इस तरफ के बोर्ड को क्लियर कर देता हूं.
ओके, सो नाउ फाइनल आंसर लिख देते हैं. सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, लेट्स राइट इट समवेयर ओवर हियर, dy by dt should be equals to 2 cos root t, 2 cos root t डॉट माइनस साइन रूट टी. तो माइनस साइन सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, बाहर लगा देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन रूट टी. देन आ गया डी बाई डी टी ऑफ रूट टी विल बी 1/2 रूट टी. तो यहां पर आ जाएगा 1/2 रूट टी. 2 से 2 कैंसिल. अच्छा हाँ, बाय द वे, ये रूट टी से रूट टी कैंसिल कर सकता हूं ना? नहीं कर सकता गाइस. ऑफ कोर्स आई कांट से दैट वर्ड, बट बाकी सारे स्टूडेंट समझ जाएंगे ऑलरेडी विच वर्ड. एनीवे, सो डू नॉट डू दैट थिंग दैट रूट टी से रूट टी कैंसिल कर दिया. सो इट इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज माइनस कॉस रूट टी डॉट साइन रूट टी. ये भी आ चुका आपके पास में. अब क्या करोगे? फाइनल आंसर dy बाई dx, dy बाई dx should be equals to, what is now dy by dx? सबसे पहले ऊपर वाली टर्म which will be minus cos root t dot sin root t whole upon, what is dx? dx कहाँ गया? ये रहा 2 sin t dot cos t. तो यहां पर आ चुका है 2 sin t dot cos t. नाउ कभी कभी बुक के अंदर ये आंसर आपको नहीं मिलेगा. आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय नहीं मिलेगा सर? इसका मतलब क्या है नहीं मिलेगा? हाँ, मतलब नहीं मिलेगा. आप बोलोगे बट क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज कई बार वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा. बट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज वो सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मूलेज में आएगा ही, अदरवाइज आप और कंफ्यूज हो जाओगे. सो एज ऑफ नाउ आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जब भी कभी कोई भी एक वेरिएबल है उसके सामने सारी टर्म्स कांस्टेंट दिखाई दे रही हैं, तो डू नॉट मेक इट जीरो, यूज पैरामीट्रिक फंक्शंस. गॉट इट? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. Let's take one more example, and that particular one more example is going to be x is equals to sin t dot cos t and y should be equals to sec t. Okay, अब क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल ध्यान रखना. So dx by dt should be equals to sin t dot cos t, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन. तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डॉट डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन. नाउ इट शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर आ चुका है sin t. now cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी माइनस sin t. so let's write minus sin t plus cos t and dot d by dt of sin t is again cos t, तो ये हो जाएगा cos square t. so it is going to be minus sin square t plus cos square t, or you can write it like this, cos square t minus sin square t. ध्यान रखना गाइस प्लीज, cos square theta minus sin square theta should be equals to cos 2t. बट अभी के लिए फिर से मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, you can leave the answer right over here. so ये आ चुका है dx by dt. now let's take once again dy by dt. कैसे करोगे dy by dt? sec t है आपके पास में, तो sec t का क्या हो जाएगा? sec t dot tan t. अब क्या करोगे? वंस अगेन द सेम पार्ट, dy by dx, dy की टर्म ऊपर, sec t dot tan t अपॉन dx की टर्म नीचे. व्हाट वाज dx की टर्म? cos square t माइनस
sin square t, and that's all. So this would be your answer. Once again, ये आपका बुक से मैच मे भी कर सकता है, मे भी नहीं कर सकता. डू नॉट गेट स्केयर्ड, आपका आंसर बिल्कुल सही है. फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, डिफरेंशिएशन के अंदर या इंटीग्रेशन में यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप सिंप्लीफाइंग. आंसर माइट भी आपका आ जाएगा, आंसर माइट नॉट भी आपका आएगा, ध्यान रखना. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, डू वी हैव टाइम? ये तो हो गए थे पैरामेट्रिक फंक्शन. सो शुड आई डिस्कस द HOD, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और एल्स we'll leave it over here as of now, because आज आपके पास में today I'm going to give it to you from your own textbook exercise दूंगा. And of course don't worry, I'll send you the PDF also. अदरवाइज आप NCERT बुक का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या आप स्टेट बुक के अंदर, मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यदि आप किसी भी बोर्ड के हो तो अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड का PDF डाउनलोड कर लो यदि बुक्स नहीं है आपके पास तो, एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज एंड लेट मी नो द प्रॉब्लम्स इन द कमेंट्स गाइस. ओके, use the comments guys please. Thank you so much guys once again. We'll meet tomorrow once again with the same lecture. Hopefully tomorrow we'll be completing higher order derivatives and the most important exercise which is known as substitution method. एक बार वो खत्म हो गया, your differentiation is done, and once your differentiation is done, believe me guys, मतलब I can't tell you what to believe, you come to know. Thank you, bye.